हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो, कंपैरिजन वीडियो है विलेज पर इंडिया पाकिस्तान की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। You must have seen many villages, and we have also seen many villages and shown them ਵਿਖਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਫਾਈ ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਘਰ ਮੋਹਰੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੀ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੱਕੀ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆ ਤੇ ਟਫ ਟਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਬਤੌਰ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂੜਾ ਜਾਂ ਛਾਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਡਲ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਐਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਸਿਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਦ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਤੱਕ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡੂ ਕਹਾਉਣੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਦੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਦਲਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਗੋਜਰਾ ਦਾ ਪਿੰਡ। 248 ਗਾਬੇ ਮਾਲੜੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਦਲ ਬਾਹਰ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਲੜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਾਲੜੀ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 248 ਗਾਬੇ ਮਾਲੜੀ ਗੋਜਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਰੀਦਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਡਾ ਮੂੰਗੀ ਬੰਗਲਾ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 248 ਗਾਬੇ ਮਾਲੜੀ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 247 ਗਾਬੇ ਮਰੂਸੀਪੁਰ, 245 ਗਾਬੇ ਤਲਵੰਡੀ, 249 ਗਾਬੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡ 180 ਗਾਬੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਗੋਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12 ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। 47 ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਘਰ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਟੋਟਲੀ ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸਕੂਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੰਦ ਗੈਰ ਕਾਸਟਕਾਰ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਰਾਮਪੁਰ, ਬਾਗੇਵਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਮਾਲੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 80 ਮਰਬੇ ਆ। ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, 3 ਮਸਾਜਿਦ ਤੇ 2 ਮਦਰਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਾਕਖਾਨਾ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਨੇ,
ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਖ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੈਸਲ ਇਖਲਾਕ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਦ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। मोहम्मद शफीक साबका नाज़िम डॉक्टर एजाज। तो मैं आ चुकी हूँ अभी मॉलिंगनोंग विलेज में। तो ये रहा एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज मॉलिंगनोंग। इस गांव को ये अक्लेम 2003 में मिला था बाय डिस्कवर इंडिया मैगजीन। इस विलेज में खासी कम्युनिटी रहती है जो ये मानकर चलते हैं कि साफ सफाई रखना सिर्फ एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रादर इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। और देखने में तो ये विलेज काफी छोटा है, लेकिन यही गांव पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। तो अभी हमने इस विलेज के अंदर एंट्री ले ली है और क्लीन तो ये दिख ही रहा है, साथ में मुझे ना बहुत सुंदर भी दिख रहा है। एशिया का क्लीनेस्ट तो है ही, पर साथ ही साथ एशिया का मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज भी होना चाहिए ये। तो इस विलेज में सबसे पहले अंदर आते ही आपको दिखेगा ये सुंदर सा चर्च। यसुदी बल्ले बल्ले। यहाँ ऑलमोस्ट हर कॉर्नर पे मुझे ना ये दिख रहा है, ये डस्टबिन है बैम्बू का बना हुआ और ये इस तरह के स्टैंड पे लगाया गया है। और ऑलमोस्ट आप मानो हर 20-30 मीटर पे मुझे एक ये डस्टबिन दिख रहा है। इन डस्टबिन को यहाँ लोकल लैंग्वेज में कोक कहते हैं और यही को मॉलिंगनोंग विलेज के हर कॉर्नर में मिलेगा। और इन्हीं में जो ऑर्गेनिक ट्रैश कलेक्ट किया जाता है उसे आगे मैन्योर में कन्वर्ट कर के हर कॉर्नर में मिलेगा। और इन्हीं में जो ऑर्गेनिक ट्रैश कलेक्ट किया जाता है उसे आगे मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं और वही ऑर्गेनिक मैन्योर से इस गांव के ये खूबसूरत गार्डन्स को बनाया जाता है। आप देखिए जरा यहाँ की ये हरियाली, रंग बिरंगे फूल, शायद इसीलिए इस गांव को गॉड्स ओन गार्डन भी कहा जाता है। इस गांव की मैं आपको नाली भी दिखा दूं, ये देखिए बिल्कुल नीट क्लीन, कोई प्लास्टिक कुछ नहीं। इतनी सफाई ना मैंने कभी किसी गांव में, कभी किसी सिटी में नहीं देखी। बहुत ही नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पैन जगह। अभी तक मुझे इतना सा कोई ना टुकड़ा, तिनका, गंदगी का कुछ भी नहीं दिखा है। और दिखेगा भी कैसे? इस गांव में सभी, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी अपने इस गांव को साफ रखने में कंट्रीब्यूट करते हैं। यही सिलसिला कई जनरेशन से चला आ रहा है और शायद यही रीजन है कि मॉलिंगनोंग विलेज के लोगों में सफाई रखना अब एक आदत बन चुका है। यहाँ इस गांव में ना साफ सफाई का एक और कारण भी है कि ये जगह ना कम्प्लीटली प्लास्टिक बैंड है। और अब इतने सारे आप सभी को मैंने फैक्ट्स बता दिए हैं, तो एक फैक्ट और जो मैंने पढ़ा है कि इस गांव का ना जो लिटरेसी रेट है दैट्स 100%, 100%। और ये रहा यहाँ का प्राइमरी स्कूल जहाँ इस गांव का हर एक बच्चा पढ़ रहा है। मॉलिंगनोंग विलेज की एक और बात है कि यहाँ टिपिकल पेट्रियार्की रोल फॉलो नहीं होता। यहाँ बच्चों को उनके माँ का नाम दिया जाता है एंड द होल फैमिली वेल्थ इज पास डाउन फ्रॉम मदर टू द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द फैमिली। इस गांव के हर घर में फंक्शनल टॉयलेट है, स्मोकिंग इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। ये विलेज प्रूव कर रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट, 100% लिटरेसी रेट एंड 100% क्लीनलीनेस, ये सभी अचीवेबल है। ये जगह वैसे अब धीरे धीरे काफ़ी ना प्रमोट हो रही है, तो अब ये हम सब पे है कि हम यहाँ आए, इस जगह को एक्सपीरियंस करें, फील करें, इसे गंदा ना करें। और अभी यहाँ सामने ना मुझे इतना सुंदर बैम्बू का ना एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, अभी मैं उस पर चलने वाली हूँ। यहाँ की तो हर चीज़ इतनी सुंदर है। अभी ऑलमोस्ट हमारा ये टूर एंड होने वाला है, पर सच बताओ मेरा मन कर रहा है एक और राउंड ले लिया जाए। तो ये रहा हमारे देश का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव, जहां से मैं बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ। अगर हर गांव चाहे तो मॉलिंगनोंग विलेज जैसा बन सकता है, बस थोड़ी सी हिम्मत और एक दूसरे का साथ। आप सब सच्ची सच्ची बताना, आपको अजीब नहीं लग रहा है एक ऐसा गांव देखना
जहाँ पे इतनी सी भी गंदगी नहीं है। तो मॉलिंगनोंग विलेज से निकलने से पहले आपको इस गांव की वो पड़ोसी देश भी दिखा दूंगी। ये गांव इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर बसा है और यहाँ से बांग्लादेश प्लेन्स का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है। ये साइड बांग्लादेश सारा। और इससे पहले कि शाम ढले आपको इसी गांव के पास एक और जगह दिखाई जा रही है। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी विलेज पर है। और काफ़ी ना चीज़ें डिपेंड होती है लोगों पर, जहाँ पर आप रहते हैं ना वहाँ के लोगों काफ़ी मतलब के एक हिस्सा डालते हैं उस चीज़ में, क्या एक सफाई है विलेज में, और सारे जो सिस्टम है ना उसको मतलब के परफेक्ट बना कर रखा जाए। लेकिन अब तो इधर तो भाई मतलब कि हम तो अपने आप पर डिपेंड हो गए काफ़ी चीज़ों पर, और कोई इकट्ठा साफ नहीं होता हमारे विलेज का। ज़्यादातर हमने इंडिया में विलेज देखा, अगर पंजाब में कोई विलेज है तो उधर भाई एक मतलब कि एक बंदे के पास हैंडल होता है सारा सिस्टम है, उसने आगे फैसले करने होते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट पैसा देते हैं तो वो एक लगाते भी हैं और लोग उससे पूछते हैं। अब अगर इधर पाकिस्तान के विलेज की बात करें तो इधर बहुत विलेज मतलब के खूबसूरत भी हैं, लेकिन उस साथ तक नहीं खूबसूरत जो इस ये इधर मतलब के नेचुरली चीज़ें हैं, और सारा कुछ उधर भाई एक उनके पास भी है। और नेचुरली चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि उसमें काफ़ी एक वाइब होती है अच्छी। और पाकिस्तान में जो विलेज है ना वो इधर मतलब कि गुजरात साइड पर या सियालकोट वाली साइड पर या अलग अलग यार जिस सिटी में भी हो, ये होते ही सारा एक डिपेंड लोगों पर है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें ना तो उधर विलेज सारे ऐसे, उनमें डिसिप्लिन है और भाई उन्होंने कानून काफ़ी मतलब के बना कर रखे हैं। लास्ट जो विलेज देखी थी मतलब के शॉप पर कोई बंदे ही शॉपकीपर ही नहीं बैठा होता, अपना सुकून से वो चीज़ें लेते थे और पैसे डालकर चले जाते थे। तो वो मुझे लगता है कि लोग अपने आप को उन्होंने भाई सुलझा कर भी रखा हुआ है, और होना भी ऐसे चाहिए। अच्छी बात है यार, एक रूल बनने चाहिए। बाकी अगर मतलब के और हमारे पाकिस्तान के विलेज की बात करें ना तो इधर गंदे विलेज भी बहुत है यार, जहाँ पर मतलब के बुरा हाल है, कोई सिस्टम ही नहीं है। उस पर ये है कि लोग अपने आप पर डिपेंड है। लोग यही बोलते हैं कि हमने पास अपना जो थोड़ा सा एरिया है इसको उसकी थोड़ी सी सफाई करनी है, बाकी जो रहता है वो साइड पर रहे। लेकिन मुझे इंडिया के पर्सनली भाई पंजाब के विलेज बहुत पसंद है, क्योंकि उधर एक सहूलतें काफ़ी है, उधर बैंक है, उधर आपको मतलब कि जो हम सिटी में हम चीज़ें जाते हैं ना लेने तो वो उधर एक गांव में अवेलेबल है। यहाँ तक कि बस फ्री है, आप बस में फ्री में मतलब के जा सकते हैं, और बैंक भी उधर होता है, पिज़्ज़ा हट भी होता है, सारी चीज़ें उधर अवेलेबल होती हैं। वीडियो बड़ी कमाल की थी। हमारे जो पाकिस्तान वाला गांव था ना वो यहाँ से तकरीबन है 30 किलोमीटर, अपने गांव से ना 30-40 किलोमीटर है। तो बड़ा प्यारा गांव बनाया हुआ था उन्होंने। और देखने वाली बात यह है वो गांव ठीक था यार, इतना भी नहीं था। बाकी नेचुरली चीज़ों की बात करें, रोड बनाने से ना कोई खूबसूरती नहीं होती गाँव की। जैसा ये गाँव था उन्होंने ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की, जैसे वो उन्होंने टोकरी लगाई हुई थी, टोकरी लगाए तो उसमें वो जो होता था वो फेंक के ऑर्गेनिक चीज़ों को, फूल चूल या जो भी गिरते हैं उनकी खाद बना के वो भाई उन्होंने इतनी ग्रीनरी बनाई हुई थी। यहाँ पे उस यहाँ के मुकाबले में देखा जाए ना तो वो गांव बहुत ही बेटर था। यहाँ पे गांव के भाई जो होती हैं सड़कें होती हैं, जो भाई चौराहे होते हैं, उनका कोई हाल ही नहीं होता। वो तो गांव उन्होंने बहुत बेहतर बनाया था, और वो एशिया का नंबर 1 पे है क्लीनेस्ट गाँव जो इंडिया वाला है। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और कोई शक नहीं, बहुत ही खूबसूरत गांव था जो उन्होंने दिखाया ना। लेकिन यहाँ भी जो है ना, यहाँ का गांव वो भी काफ़ी प्यारा था। मतलब जैसे उनको एक मॉल दिया हुआ था ना, उन्होंने उसको बहुत साफ़ सुथरा बना के रखा हुआ था। लेकिन ओवरऑल गांव को यही है कि जो खुद के लोग होते हैं ना वही साफ़ सुथरा रख सकते हैं। अगर हम एक ये चीज़ बोल दे कि नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही आएगी उसने ही साफ़ करना है, ये चीज़ें नहीं होती। उनका हक बनता है आपको एक फैसिलिटेट करना, आगे आप उसको मेंटेन करना। अब हमारे भी गांव में उन्होंने एक रोड बना के दिया, काफ़ी ज़्यादा बाज़ार भी बना के दिया, लेकिन उसके बाद काफ़ी लोग हैं ना उसको मेंटेन नहीं कर पाते। एक लोग कमेटी भी बनाते हैं कि हम गांव को साफ सुथरा रखें, लेकिन उस हद तक लोग साथ नहीं देते कि बनाने वाले नहीं छोड़ते भाई। तो दूसरी साइड आ जाए तो वहाँ पर एक सबसे मेन चीज़ है लिटरेसी रेट, जो 100% उन्होंने वो बताया है ना
कि कोई भी ऐसा इंसान है नहीं कि जो वहाँ पे पढ़ा लिखा ना हो। तो यही चीज़ होती है कि जहाँ पे इतने पढ़े लिखे हैं और उन्होंने ये ठानी हुई कि एक बंदा साफ़ सुथरा नहीं रख सकता, उन सब को इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा, सारों को मिलकर ये काम करना होगा। कोई भी चीज़ किसी को नज़र आती है उठा कर वहाँ उन्होंने वो लगाए हुए हैं बांस के बने हुए, तो उसके अंदर वे डालें और साफ़ सुथरा आपको नज़र आएगा। और है भी एक लोकेशन भी नॉर्थ ईस्ट है, तो उधर एक ऊपर से मॉल भी ऐसा बना होता है, वेदर भी तो और प्यारा लगता है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, दोनों तरफ से ही ना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये चीज़ें डिपेंड करती हैं जो वहाँ के रैशी होते हैं उन पे। अगर हम किसी की बात नहीं करते, हम अपने गांव की बात करते हैं, क्योंकि ये शऊर आवाम के पास खुद आना चाहिए। तो आवाम के पास, हमारे जो पाकिस्तान है खासकर, इसमें शऊर नहीं है। इधर हमारे मुल्क में जनाब, हमारे ही गांव में स्टार्ट में जब लाइट आई थी, बिजली आई थी, तो जनाब हर खंबे के साथ एक एक लाइट लगाई गई थी, ठीक है। इधर वो ना अब लाइट है, ना उस लाइट का कोई राड, वो जो जिसके साथ लाइट लगी हुई थी वो भी नहीं है। उसके बाद जनाब एक एक हर खंबे के साथ एक एक जो है वो टीन का डब्बा लगाया गया था कि जो कोई चीज़ मिले नीचे पड़ी है वो आप इस डब्बे में डाल दें। वो डब्बा भी गायब हो गया। उसके बाद सफाई वाले आप आ रहे हैं। ये नॉलेज है कि यही चीज़ है कि जब हम लोग खुद गंद फैलाते हैं तो दूसरों से क्या उम्मीद रखेंगे। तो इधर यही बात है मेरा भाई, अगर एक बंदा कोई एक छापर या लिफाफा फेंकता है ना कोई चीज़ खाकर, तो आगे देख लें कि दूसरा 2 फेंकेगा, तीसरा 3 फेंकेगा। ये कोशिश करेंगे कि ये मेरे घर के आगे है ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके दूसरे के घर के आगे कर दूंगा। वो करेगा, वो 2-3 को दूसरों के घर में आगे कर देगा। तो उससे एक तो लड़ाई बढ़ेगी और लड़ाइयाँ होती भी रहती हैं, और यहाँ तक के लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि भाई जानी नुकसान भी हो जाता है। लेकिन जो चीज़ असल है ना, वो हम फिर भी नहीं उससे पीछे हटते, फिर भी वही बातें करते हैं। लेकिन अगर विलेज सिस्टम की बात करें ना, तो जो भाई ने विलेज सिस्टम इधर पाकिस्तान में दिखाया ना, वो भी बेहतरीन है। हर चीज़ है, सहूलतें हैं, बैंक इधर भी है, गांव में भी है। लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए कि भाई आवाम को खुद ही इन चीज़ों की देखभाल करनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से कोई बंदा है वो आपको इन चीज़ों की रखवाली करके दे और आप जो है जिधर कोई चीज़ खाई उधर ही फेंक दी। केला खाया छिलका फेंक दिया, माल्टा खाया छिलका फेंक दिया। ये चीज़ें आपने सही करनी है, कोई किसी और ने नहीं आपको ठीक करके देनी। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है दोनों साइड की। भाई ये होती है आवाम की जिम्मेदारियाँ। ये नहीं होता कि कमेटी वाले आन के भाई अपनी साफ सफाई करें, कुछ अपने भी फर्ज बनते हैं। लेकिन कमेटी से पहले भाई इधर एक अपने हमारे गांव में भी एक कमेटी बनी थी, उन्होंने भाई अच्छी अपना सफाई का जो ना काम शुरू किया था, सफाई की, सबको भाई याद देकर के उन्होंने भाई खालियाँ भी साफ की। लेकिन उन्होंने जब देखा कि आवाम जो है ना हमें देखकर ये अपना ज़्यादा गंद उधर भाई फेंकना शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने भाई पीछे हटना शुरू कर दिया कि ये आवाम नहीं सुधरेगी, हम इनको सुधारना चाहते हैं लेकिन ये नहीं सुधरेंगे। वैसे ही भाई उन्होंने भी छोड़ दिया। लेकिन अब जो कमेटी वाले आए हैं अब भी भाई वही काम शुरू हो गया है। लेकिन भाई उधर इंडिया की जो अपना दिखाया है ना, वो भी भाई अच्छा है सफाई के लिहाज से भी। और भाई उधर जो अपना दरख्त फूल वगैरह है ना, वो एक भाई अलग ही उनकी लोग बनी हुई है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई अच्छा था विलेज। अब हमारी साइड पे भी विलेज कोई मतलब काम नहीं, जो इधर हम रह रहे हैं ना, इस हवाले से अगर देखा जाए तो वो भाई बहुत बेहतर है। ये देखो ना सारा भाई डिपेंड करता है, अब जो भी उस बंदे ने उधर नाम लिए हैं, या सबसे मेन चीज़ थी कि एक आध बंदे ने वहाँ पे जो है ना वो ये काम स्टार्ट किया, जिसको थोड़ा बहुत एक जो है ना वो मतलब शौक था, शौर समझ लें। और दूसरी तरफ यार जो उसने बात की है ना लिटरेसी रेट की, अब 100% है। अगर वहाँ पे इधर पाकिस्तान में एक विलेज के अंदर ही आ जाए ना 100%, तो मैं कहता हूँ हमारे लोग भी इसी तरह ही चीज़ों की हिफाजत करें। क्योंकि एक जो पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मतलब आ जाती हैं कि वो एक अच्छे फैसले करता है जहाँ पे वो मतलब रह रहा था। खासकर ये सफाई से रेलेवेंट हो गया। लेकिन
वो भाई एक उधर उस साइड के ऊपर लोगों के अंदर बहुत शौर है। आप देख लो कि उन्होंने कैसे एक मेंटेन करके हर चीज़ को रखा हुआ। और उसके अलावा हमारे भी इधर यार बहुत एक चीज़ों का मसला मसाइल है, खासकर ये जो भाई देखो ना, एक देखिए जो गंद फैलाते हैं ना ये लोग भाई बाज ही नहीं आते। अब यहाँ पे इधर हम अपने गांव की बात करें तो इधर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, हर एक स्टेप इन्होंने लिया है ताकि जो ना वो चीज़ें मेंटेन रखें। लेकिन भाई एक सिर्फ 10, 15, 20 दिन, महीना, 2 महीने, इसके अलावा उसके बाद हर चीज़ कोई वो डब्बे उठा के ले गया। तो जो इन्होंने सफाई जिसमें मतलब वो कूड़ा करके डाला वो डब्बे को गायब करके ले गया। तो ये जो ना वो मतलब लोगों के अपनी एक जिम्मेदारी होती है, जो वहाँ पे भाई रहने वाले होते हैं ना, अगर वो चाहें तो वो भाई हर एक चीज़ एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी फैसिलिटीज़ का होता है तो भाई इधर इस विलेज में जो इधर पाकिस्तान का दिखाया वहाँ पे एक बैंक का होना, और उसके अलावा बाकी भी चीज़ें उन्होंने स्पोर्ट्स से रेलिवेंट या स्कूल वगैरह उन्होंने किए होते हैं, और खासकर एक सेल्स से रेलिवेंट। लेकिन ये हर एक में नहीं है, ये एक आता है जो भाई मतलब आप उसका फायदा उस बंदे ने उठाया जो चीज फैक्ट्री था भाई पंजाब हुकूमत का, उसको पता मैं इधर का रहने वाला हूँ, और उसने भाई अपने गांव के ऊपर इस तरह एक पैसा लगाया भी है, चाहे हुकूमत के थ्रू लगवाया है जैसे भी किया। लेकिन ये हर एक में नहीं है, ये मतलब उधर ही है। कई गाँव में है, ज्यादातर नहीं होता किसी में। बैंक तो भाई एक बहुत बड़ा सरप्राइज होता है विलेज में अगर बैंक हो जाए। लेकिन अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा।